Okay, we'll start Material Master. Hmm. ठीक है, सी शेयर किया था क्या? You see this, Madhvi? Yes, sir. Yes, sir. Uh, See, these are the standards, okay, of material type. Mm. See, in any industry, there are different material types. Okay, Uh, different types of materials which are being used in any company, any industry. So these are few of the examples of different types of materials. Like, see, this is the definition and this is the code, the standard SAP code for mm-hmm. different material type. ROH for raw materials. Okay, Okay. HALB is for semi-finished goods. FERT for finished goods. VERP packing materials. Same food to food materials, pipeline materials same. Okay, SERV is service for services. Okay, HAVA for trading materials. UNBW unvaluated materials, non-stock materials. So these are different material types which are being used in industries. Again, it is not necessary that all these material types will be used in single company. Yes. Maybe few of the material types are used, rest are not. Okay, so it depends upon the company. Got it? Also. Okay. So you, this is available in the chat box. Okay, Okay. I took it from the chat box itself, so you can get it from there. So now we'll start. Okay. Okay. So to create a material, we have a T code called MM01. Okay. To create material, T code is MM01. Okay. So here you see industry sector and material types. These two we need to create because a company will ask, okay, to customize the industry sector and material type for them.
We have standards available. Okay, these are the standards, industry sector. Not means in this list, it is not so key all these are standard one. No, this is a practice server, so everyone is practicing also. Okay. Material Say, industry sector. sorry. No, Yeah. nothing. See, this is the material type. Okay. As I said, if you type here ROH, someone has changed it. Just a minute, let me see again. Someone has, changed the standard one itself, which we should not do actually. हम लोगों को, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग ना स्टैंडर्ड के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करना. Standard should never be altered, but everyone is not listening. किसी ने चेंज कर दिया, कोई बात नहीं. So first we'll see how to create a material, and then we will see the customization part also. Okay. तो पहले हम क्या देखते हैं कि मटेरियल बनाएंगे कैसे. For material creation, MM01 is the T code. We'll come to this page. After that, we'll have to select material type. Suppose, industry sector. Okay. Suppose I have selected this target fashion is my industry sector, and material type is raw material. Suppose raw material for target. Okay. Raw material for target. Okay. After selecting these two things, I'll press enter. Here, it will ask to give my plant. This is the plant. And this is the storage location. After selecting these two things, click on continue. Here, see, automatic this material number is assigned here. ये ऑटोमेटिक आ गया, सिस्टम ने ऑटोमेटिक दे दिया. ओके. सो we'll see this also कि ये कैसे आया. Okay. This we will also learn how to assign number range. This we'll see. Abhi right now you just have to focus like how we are creating a material. Okay, sir. Okay. Customization Yes. we'll do after creating one material. We'll see the customization part as well. अब यहाँ पे क्या है कि मटेरियल नंबर तो आ गया, मटेरियल नंबर इज गिवन बाय द सिस्टम इटसेल्फ. उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, यू हैव टू डिफाइन द मटेरियल लाइक व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इट इज. सो सिंस माय कंपनी इज टारगेट फैशन, so it means my material would be something related to fashion. So cotton. I'm close for शर्ट के लिए. ऐसे शर्ट के लिए कर देते हैं अपन इसको. ठीक है सर, ये बॉम्ब में भी जब फिनिश गुड बनता है तो वो इसके रिलेटेड है मटेरियल मास्टर के? नहीं. मटेरियल मास्टर के है, बिल्कुल है. सही है. जो रॉ मटेरियल रहता है ना, हाँ,
रॉ मटेरियल ही यूज करके तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई एंड प्रोडक्ट बनाता है, बराबर। ओके। और बॉम्ब भी वही है, बॉम्ब है बिल ऑफ मटेरियल्स, मतलब एक वो समझ लीजिए रिवर्स इंजीनियरिंग है किसी प्रोडक्ट का। बीओएम जो होता है वो रिवर्स हाँ। इंजीनियरिंग है, अ काइंड ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर एनी प्रोडक्ट। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ सिर्फ एक शर्ट का। तो एक शर्ट में क्या होगा, उसका मेन जो क्लोथ है, मान लो कॉटन का होगा, सिल्क का होगा, जो भी होगा, एक शीट आएगी कपड़े की, वो एक रॉ मटेरियल होगा। हाँ। उसके अंदर बटन आएगा, ठीक है, उसके अंदर लॉन्ग क्लॉथ आएगा, ठीक है, उसका फिर पैकिंग मटेरियल। हाँ थ्रेड मटेरियल। आएगा, उसकी पैकिंग मटेरियल्स आएंगे, बॉक्स आएंगे उसका, है ना, उसके लेबल्स ओके। आएंगे, जो भी है, ये सारी चीजें आएंगी इसकी। तो तब ये सारा, जाके हाँ, फिनिश गुड बनेगा। तब जाकर के एक फिनिश गुड बनेगा। तो बीओएम में क्या होगा कि मान लो कितने मीटर कपड़ा लगेगा एक शर्ट के लिए, ठीक है, ओके। वो आएगा कि इतने मीटर क्लॉथ लगेगा, कितने बटन्स लगेंगे, कितने मीटर धागे का लगेगा, ठीक है, ओके। कितने पैकेट्स लगेंगे उसको पैक करने के लिए, कितने बॉक्सेस आएंगे, कौन सा बॉक्स आएगा, साइज क्या रहेगा, डायमेंशन क्या रहेगा बॉक्स का, वो सारी चीजें आएंगी। मतलब वो सारी चीजें जो एक फिनिश प्रोडक्ट जिसको आप मार्केट में बेचेंगे, जिस कंडीशन ओके। में, वो पूरे को बनाने में क्या क्या चीजें लग रही हैं, कितनी क्वांटिटी में लग रही हैं, वो बीओएम में पूरा रहता है। और ये जो बीओएम का जो पार्ट होता है ना, ये प्रोडक्शन प्लानिंग में आता है, ओके। ठीक है। ओके, गॉट इट। हाँ, वो एमएम में नहीं आता, एमएम में हम सिर्फ उसके रॉ मटेरियल्स को देखेंगे, ठीक है, हम ओके। हम हम मटेरियल परचेज कर देंगे। बीओएम बनाने का काम किसका है, प्रोडक्शन वालों का है, क्योंकि उनको पता है कि कौन कौन सा मटेरियल वो किस चीज़ के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे। एमएम वाले को वो पता नहीं होता, एमएम वाले का काम है कि प्रोडक्शन वालों ने मांगा ये मटेरियल चाहिए, अपने को वो मंगा करके देना उनको, ओके, गॉट इट। ठीक है। यस सर, थैंक्स। ठीक है, अभी क्या हो गया, मान लो कि हमने शर्ट मंगाया और शर्ट है, ठीक है, चलो शर्ट कर देते हैं, इसमें सिर्फ शर्ट लिखते हैं अपन, ठीक है। और उसके बाद इसका जो, इसको चलो ईच में करके करते हैं। मटेरियल ग्रुप जो है, मैंने अपना मटेरियल ग्रुप भी बना रखा था, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो अपने को मटेरियल ग्रुप भी मिलेगा इसका। ये आया, ठीक है। हट गया क्या ये सारा, एक मिनट, का सारा हट गया, डिलीट हो गया सारा। मेरा जो रॉ मटेरियल मैंने बनाया था, सॉरी मटेरियल टाइप जो बनाया था, मटेरियल ग्रुप, वो बनाया था टी शर्ट का, शर्ट्स का। हाँ ये आया, ये शायद, हाँ ये रहा, ठीक है। मान लो ये हाफ शर्ट का है, हा, हाफ स्लीव से फुल स्लीव से, चलो फुल स्लीव से ले लेते हैं, ठीक है। ये मेरा हो गया मटेरियल ग्रुप। मटेरियल ग्रुप होता क्या है, अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं शर्ट कर रहा था, अभी शर्ट है मान लो, ये तो फिनिश गुड की तरह ही एक तरह से हो गया कि मान लो उसको पैकिंग करेंगे, अलग बात है। मान लीजिए कि कोई दूसरी इंडस्ट्री है, जैसे कि फार्मा की इंडस्ट्री है, उसमें कुछ केमिकल लाया जा रहा है, ठीक है। तो या उससे बेहतर मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा प्रोडक्शन कंपनी के बारे में। मान लो कहीं पे कोई स्क्रू लिया जा रहा है, ठीक है, या वायर खरीदा जा रहा है, रॉ मटेरियल में वायर आ रहा है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया वायर, ठीक है। तो वायर कैसा रहेगा, वायर मतलब हाफ इंच का भी होता है, वायर कॉपर का होता, वायर एल्यूमिनियम वाला भी आता, ठीक है, उसके इंचेस होते, बराबर है, थिकनेस भी होती है ना। तो इस तरह से वायर्स होते हैं। तो आप वायर तो किसी भी तरह का यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में पूरा डालेंगे जो जो वायर आप खरीद रहे हैं। मान लो कि वायर है हाफ इंच कॉपर वायर, ठीक है, हाफ इंच कॉपर वायर करके आपने लिख दिया डिस्क्रिप्शन में, लेकिन वो ग्रुप क्या रहेगा, वायर का एक ग्रुप बना देंगे हम, समझे। मटेरियल ग्रुप जो बनेगा उसका, ये देखिए यहाँ पे मैंने गोदरेज का बनाया था, ये स्क्रू के लिए है, ठीक है।
स्क्रू गैस के लिए, ये वायर का है, ठीक है। तो जितने भी तरह के वायर आप खरीदेंगे वो इस मटेरियल ग्रुप में आ जाएगा, वायर के में, समझ गए। उसी तरह से मान लो आपने एक बनाया स्क्रू का, एक मटेरियल ग्रुप आपने बनाया, मटेरियल ग्रुप आपका एक स्क्रू का बनाया आपने, तो आप जितने भी तरह के स्क्रू आप खरीदेंगे, ठीक है, चाहे वो 1 mm का हो, 1/2 mm का हो, ठीक है, जैसा भी आप स्क्रू खरीद रहे हैं, छोटा बड़ा पतला मोटा जैसा भी है, वो मटेरियल ग्रुप क्या रहेगा, उसका स्क्रू रहेगा। ओके, मटेरियल ग्रुप का कंसेप्ट समझ में आया क्या होता है? यस सर। तो ऐसे इस ग्रुप के साथ साथ सर हम साइज भी देख सकते हैं क्या इसमें? वो यहाँ पे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप डालेंगे कौन सा साइज का ले रहे हैं। ग्रुप में आप साइज के लिए फिर ग्रुप नहीं बनाएंगे ना, वो तो फिर एक एक इंडिविजुअल हो जाएगा। ग्रुप बनाने का, मटेरियल ग्रुप बनाने का कि किस चीज़ का, आप जैसे आपने ग्रुप बना दिया क्या कहते हैं, टायर का, मान लो कि प्रोडक्शन कंपनी है ऑटोमोटिव की, टायर आ रहा है उसमें, जी जी आपने टायर बना दिया, एक मटेरियल ग्रुप टायर बना दिया। टायर भी बहुत तरह के आते हैं, ठीक जी है, सर। आते हैं ना, अलग अलग यस थ्रेड के आते, रेडियल टायर होता, कुछ सिंपल टायर होता है ना, ट्यूबलेस साइज होता, ट्यूब साइजें वाला भी चेंज होता, होते हैं। साइज में भी चेंज होता, ट्यूबलेस होता, ट्यूब वाले भी टायर्स आते, बहुत तरह की वैरायटी हो जाती ना। जी तो लेकिन आप क्या करेंगे, मटेरियल ग्रुप बना देंगे एक टायर बोल करके, ये टायर का मटेरियल है, टायर खरीद रहे हैं हम, लेकिन टायर में भी बहुत तरह के होंगे, तो वो सारा जो डिस्क्रिप्शन रहेगा ना वो यहाँ पे डालते हैं अपन, ठीक है। माधवी क्लियर है आपको? Sir, I'm in, sir. नहीं, इज इट क्लियर व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है, ये डाल दिया, एंटर करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आए, ये है बेसिक डेटा, जो हमने वहाँ पे डाला था वही डेटा आगे आ गया है। यहाँ पे चलिए बेसिक डेटा 1 2 में कुछ नहीं डालना अपने को, उसके बाद आते हैं परचेजिंग। परचेजिंग में यहाँ पे डालना है अपने को, देखिए यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है और अपना ऑर्डर यूनिट है। अगर ये दोनों सेम होता है, when your basic unit of measurement and your order units, if both the units are same, then leave it blank, you don't have to put anything here, okay. But if it is different, like here basic unit of measurement we have mentioned each, and order unit if we are ordering it into kg. Sir, what is the difference, sir? What? Basic unit and order unit. See, basic unit of measurement is like in what unit the industry, the company measures that product, okay. I am the company. Yes. Oh. And in what unit I am measuring this raw material. So I choose each, means I am measuring this material in pieces, okay. But in what unit this material is being ordered? Okay. वेंडर उसमें प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, तो किस Okay. यूनिट में प्रोवाइड किया जा रहा है ये? Okay, वो है। okay. This is like a kgs or Yeah, exactly. You will get the entire list, complete list. If you open it, you will get the complete list. oh, this is the units. Okay. Yes, units. And this is the quantity. No, this is also unit. Okay. This is also unit, but this is the unit of measurement, and this is the unit of order. Sir, one example can you please show me? Yeah, that's what I am explaining ना। ये जैसे कि अभी शर्ट मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, हम अपनी कंपनी के अंदर में जो मेजरमेंट के लिए यूनिट यूज करते हैं, पीस करते हैं ईच करके। हियर आल्सो इफ यू सी यू विल गेट द सेम लिस्ट, ओके, सब कुछ है इसके अंदर। Inch, what is it? Each one piece, each. One piece. Okay. Yes, each means it is in SAP it is given each. See here, EA, each. Okay. Got it? Yes, Each sir. means you measure it in pieces, 1 2 1 piece, 2 piece, okay. Okay, sir. That is the meaning here. Each means into pieces. So this is how the company measures this raw material for internal measurement. Got it?
and this Okay. is the unit in which the industry place an order in kgs. Mm-hmm. Did you get the difference? Like we purchase the material into kgs, and when it comes to internal measurement, we measure it in pieces. Piecewise. Yes. Okay. So, okay, this purchasing group, we'll see what is the purchasing group. Till now, as of now, as I have not explained, so you can, I mean, leave it blank. See, here it will ask if you have mentioned units in both these places, na, then it will ask for this. Okay, this conversion factor it will ask for. Okay, like 1 kg, how many pieces you will get? Suppose in 1 kg we get 15 pieces of shirt. It will be too much. 10 pieces. I think this will also be more. ठीक है, 10 रहने दो. ठीक है. So अगर यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड ऑर्डर यूनिट अलग अलग है, तब आपको यहाँ पे दूसरा डालना पड़ेगा. इफ बोथ आर सेम तो इसको ब्लैंक ही छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं डालना अपने को. ठीक है, ये याद रखना. और जैसे ही हम दोनों पे एंट्री करेंगे तो अपने को कन्वर्जन फैक्टर के लिए पॉपअप आएगा, जो अभी आया था हमारे पास में, कि अभी आपने दोनों यूनिट कर लिया ना, एक केजी में है और एक ईच में है, तो दोनों के बीच में फर्क क्या पड़ेगा. ठीक है, मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि यहाँ पे करेंसी यूज करते हैं. अगर मान लो कि हम कंपनी के अंदर करेंसी यूज कर रहे हैं INR, और ऑर्डर करने की करेंसी अगर हम कर रहे थे डॉलर में, ठीक है, तो कन्वर्जन फैक्टर पूछता कि $1 के लिए कितना रुपया होता. उसी तरह से समझ लीजिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमारा पीसेस में है और ऑर्डर यूनिट हमारा केजीज में है, तो कन्वर्जन पूछ रहा है कि 1 केजी में कितने पीसेस आएंगे आपके, वो पूछता है यहाँ पे. ठीक है, गॉट इट. इसके बाद एंटर करेंगे, विल गो टू द नेक्स्ट पेज. ये स्टोरेज लोकेशन है, यहाँ पे कुछ नहीं डालना अपने को. आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी आया हुआ है. ये अकाउंटिंग है. ठीक है, अकाउंटिंग में यहाँ देखिए प्राइस कंट्रोल जो है ये V है. V मतलब मूविंग एवरेज प्राइस. ठीक है, और S मतलब स्टैंडर्ड प्राइस होता है. हम मूविंग एवरेज प्राइस ही लेकर के चलते हैं. इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा कि मूविंग एवरेज प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. यही अपन सेलेक्ट करके रखेंगे, V ही सेलेक्ट करेंगे हम. ठीक है, जब भी हम मटेरियल बनाएंगे प्राइस कंट्रोल में V रहेगा, ऑटोमेटिक V रहता है. ठीक है, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको इतना ही रहने देंगे. और जो प्राइस अपने को डालना है या मूविंग प्राइस डालेंगे. स्टैंडर्ड प्राइस में हम डाल भी देंगे, अगर कोई कुछ प्राइस यहाँ पे डालते भी हैं तो अपने को बोलेगा यहाँ पे मूविंग प्राइस डालने को. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे प्राइस कंट्रोल में V सेलेक्ट करा हुआ है. ठीक है, तो मान लो एक शर्ट का दाम 1500 कर दिया, एंटर कर देंगे. अब सेव करने के लिए आ रहा है, सेव कर दिया. नीचे देखिए द फील्ड क्लास डेफिनेशन इज रिक्वायर्ड फील्ड, हो तो गया. अच्छा, वैल्यूएशन क्लास. ठीक है, वैल्यूएशन क्लास में अभी क्या करेंगे, रॉ मटेरियल है हमारा, अभी ये 3000 ही लेकर चलेंगे अपन. ठीक है, एंटर कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं सेव. सेव कर दिया. ये देखिए हमारा मटेरियल बन गया. ये वही नंबर है जो अपने को पहले मैंने दिखाया था, सिस्टम ने असाइन किया ये नंबर. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट अ मटेरियल. ठीक है, माधवी क्लियर है? यस सर. रिजल्ट क्लियर है? yes sir. ठीक है, आज मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैसेज आ रहे हैं कि ज्वाइन करना है डेमो के लिए. ठीक है, अभी क्लासेस हमारे कल भी रहेंगे और संडे भी रहेगा. तो कल हम कोशिश करेंगे कि 8 बजे ज्वाइन कर लें, अगर 8 सवा 8 तक सही रहेगा सबके लिए. सैटरडे तो चलेगा सर. है ना, यस 8 सर. 8:15 तक Yes, sir. tomorrow will join, Okay, sir. ताकि
ताकि क्या है कि कल अपने पास में ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा. तो tomorrow I'll try to finish this material master topic completely. Even Okay. before also issue, no issues, sir. No, I won't be available before that. That's why. Okay. Okay. Yeah. ठीक है, चलिए. And Sunday also Thank we you. will have class. Okay. Okay. Okay, Timing sir. timing we'll decide tomorrow. Timing we will decide tomorrow. Okay. Okay. Thank you. Okay. Sir. Yeah. Yeah.